morning students. So today we are going to continue our new chapter, that is chapter number 2, MS Access. So in our previous class we have already studied about what is MS Access. What is MS Access and what is the database, what is DBMS, what are the advantages of database, relational database and relational DBMS. And then we also discussed about the structure of database and elements of a table. Then we discussed the components of MS Access. Then I told you how we can create an Access database by using blank database and by using a template. Then we discussed about how we can open an existing database and how we can close our database. And then we discussed about the different views of a table, how many views of table have. And then we discussed about the different data types of the table. And then we know how we can create the tables by using datasheet view and by using the design view. And then we already discussed how we can enter data in the table, कि हम table में data enter कैसे करते हैं. Then how I'm told you how we can edit the data. So today we are going to start from how we can modify a table. ठीक है कि हम टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं. For that I have opened an MS Access. So this is our MS Access sheet. So I told you how we can do the editing on it. Suppose this is my table. So I want to delete the field 1. जो भी field है उसे delete करना है. तो how I can delete it? Right click करके I can delete column. तो जो field 1 है हमारी it will be deleted. And similarly if I want to insert here, so I will click on the insert column. In the both way we can insert it. Now how we can move it? ये जो प्लस का साइन आ जाता है ना फील्ड के बाद, इसके बाद हम इसे ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं. तो इन दिस वे वी कैन मूव द फील्ड. नाउ अगेन बैक टू द प्रेजेंटेशन. इंसर्ट टी, मूव अ फील्ड. नाउ नेविगेटिंग बिटवीन रिकॉर्ड्स. हमारे पास अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स है तो हाउ वी कैन नेविगेट बिटवीन देम. बाय यूजिंग दिस इज द नेविगेशन ऑप्शन. ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए होता है. दिस इज यूज्ड फॉर द नेक्स्ट रिकॉर्ड्स एंड दिस इज यूज्ड फॉर द प्रीवियस रिकॉर्ड्स एंड दिस इज यूज्ड फॉर द लास्ट रिकॉर्ड एंड दिस वन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड दिस वन इज फॉर दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर इंसर्ट द न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड. सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड द लास्ट रिकॉर्ड एंड दिस ऑप्शन विच मार्क स्टार ऑन इट this is used for new record. Okay, now the next thing which we have to discuss, deleting a record. How we can delete a record. हम एक record को कैसे delete करते हैं बेटा. Suppose ये GH वाला जो है 6 नंबर मुझे delete करना है. What I will do? I will right click here and click on delete record option. So selected record will be deleted from our table. ठीक है बेटा. In this way we can delete it. Now the next is how we can hide and unhide row. Suppose ये name वाली row है, मुझे इसे hide करना है. I will click on the hide column, right click करके and suppose I want to unhide that, I will click on the same column again and then click on unhide it. तो वो हमारी वापस visible हो जाएगी. Clear? Now the next topic is sorting and filtering. How we can sort and filter the data. ठीक है. सॉर्टिंग मीन्स हम अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू, सॉर्ट होम टैब, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, क्लिक ऑन असेंडिंग ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर A to Z की फॉर्म में एंड देन Z to A इट शोज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द लास्ट वन इज क्लियर और सॉर्ट. दिस इज यूज्ड फॉर क्लियर द सॉर्टिंग विच वी हैव अप्लाइड. Now move to the filter. Filter option we select and use for the view the particular field. Suppose मुझे सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड देखने हैं. I select on that and click on OK. तो सिर्फ वो 2 रिकॉर्ड विजिबल होंगे, बाकी कोई विजिबल नहीं होगा. एंड देन टॉगल फिल्टर कर देंगे तो जैसा वो पहले था वैसे का वैसा आ जाएगा. In this way we can apply the filter. Now how we can freeze
कॉलम्स, हम अपने कॉलम्स को फ्रीज कैसे करते हैं और अनफ्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने सिलेक्ट किया कॉलम को, राइट क्लिक किया, फ्रीज कॉलम पे क्लिक किया तो ये फ्रीज हो जाएगा, एंड देन आई विल क्लिक ऑन अनफ्रीज कॉलम, ये अनफ्रीज हो जाएगा। सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन फ्रीज कॉलम, तो क्या होगा बेटा, जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे लेफ्ट साइड में इंक्रीज होते, राइट साइड में या इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, जैसे हम फील्ड्स को नेविगेट करेंगे, बट जो हमारी वो फील्ड थी सिलेक्टेड फ्रीज फील्ड, वो वैसी की वैसी रहेगी, दैट विल नॉट मूव बैकवर्ड। ठीक है, दिस इज द वर्किंग। नाउ सर्चिंग फॉर डेटा, हाउ वी कैन सर्च द डेटा। ठीक है, फाइंड का मतलब हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, ओके, एंड देन वी हैव दिस ऑप्शन, वी कैन सर्च फ्रॉम हेयर। जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा, अगर सपोज हमें कोई रिकॉर्ड सर्च करना है। ठीक है, सो नाउ अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, सर्चिंग डेटा भी बता दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक